So, very good morning to all students. We are now discussing about one of the most important topic, and that is anti-malarial agent. Anti-malarial agent अपन जो है डिस्कस करने जा रहे हैं. Malaria still a very common problem in our India and African countries. इंडियन सबकॉन्टिनेंट में तो है ही प्रॉब्लम अफ्रीकन कंट्रीज. इसके अलावा अफ्रीकन कंट्रीज के अलावा जो लैटिन अमेरिकी कंट्रीज हैं, अपन अगर बोलने की जो है साउथ अमेरिकन कंट्रीज जो है ब्राजील है, अर्जेंटीना है, इन रीजन्स में भी जो है मलेरिया स्टिल जो है वो कॉमन प्रॉब्लम है. We talk about the causes of malaria. There are four species commonly responsible. Vivax, the most common species responsible for causing malaria in our country. It is followed by falciparum. Plasmodium malariae cases are very rare to be found in India. However, incidences can be 0.1 to 1%. While Plasmodium ovale is not found in India. Plasmodium ovale जो है वो infection इंडिया में नहीं पाया जाता. Plasmodium knowledge. It is knowledge means जिसका knowledge कम है. This is also found nowadays in Indonesia. Indonesia जैसे countries में और कुछ African countries में this type of malaria is found. It is also called as monkey malaria because it is transmitted by monkeys. Monkeys के through transmit होता है. Vector for transmission, definitely female Anopheles mosquito is responsible for transmission of malaria. Now shortly आपको थोड़ा सा ये दिख नहीं रही होगी, लेकिन फिर भी मैं आपको थोड़ा सा साइकिल जो है मलेरिया साइकिल इज वेरी इंपॉर्टेंट in order to classify the एंटी-मलेरियल एजेंट्स. एंटी-मलेरियल एजेंट्स को क्लासिफाई करने के लिए थोड़ा मलेरिया साइकिल के बारे में जानकारी होना चाहिए. The malaria cycle is divided or can be divided into three parts: pre-erythrocytic phase, and the post-erythrocytic phase. The parasite responsible for transmission of malaria is sporozoite stage. Sporozoite stage जो होती है parasite की, that is responsible for transmission. Mosquito bite जब करता है, after mosquito bite, these sporozoites enters into circulation. They don't get divided into circulation. इस circulation में divide नहीं करते हैं. And they enters into liver. ये liver में enter करते हैं. And there in liver, they are responsible for pre-erythrocytic stage, or we can also call it as hepatic stage. अपन pre-hepatic stage बोल सकते हैं इसको, pre-hepatic stage भी बोल सकते हैं इसको. लिवर में जाके स्पोरोजोइड्स जो हैं बैठ जाएंगे लिवर सेल्स में. Now these sporozoites will convert into trophozoites and merozoites. स्पोरोजोइड्स ट्रोफोजोइट में कन्वर्ट होंगे, फिर मेरोजोइट्स में कन्वर्ट होंगे. This phase is about 6 days for falciparum. इसमें 6 दिन falciparum में लग सकते हैं. About 8 days, 8 to 9 days in case of vivax malaria, and similarly in ovale malaria. While longest duration is of plasmodium malaria. तो plasmodium malaria में सबसे ज़्यादा समय लग सकता है. It can be 12 days, 15 days also. During this phase we don't have any clinical symptoms. हमको कोई भी clinical symptoms नहीं है because ये जो है अभी latent phase में है. बीमारी जो है definitely कोई symptoms नहीं दिखाएगी because अभी liver में. So liver में shortest phase जो होगी, shortest duration will be of the falciparum malaria followed by vivax and ultimately followed by malaria. Now with the formation of merozoites, जैसे merozoites बनेंगे, now these merozoites are released from the liver cells से release होंगे and they will enter into circulation. वो blood circulation में घुस जाएंगे. And in blood circulation
these merozoites will enter into RBC, वो RBC में एंटर कर जाए। RBC में जैसे एंटर करेंगे, नाउ दिस फेज विल बी टर्म्ड एज इरिथ्रोसाइटिक फेज। इसको इरिथ्रोसाइटिक फेज भी बोलते हैं और इसको अपन इरिथ्रोसाइटिक शाइजोगोनी भी बोलते हैं, बिकॉज शाइजॉन्स जो आर द स्पेशल फॉर्म्स ऑफ मलेरियल पैरासाइट्स, वो जो है हमको जो है आरबीसी में बनेंगे और इसीलिए इसको शाइजोगोनी भी बोलते हैं, इरिथ्रोसाइटिक शाइजोगोनी भी बोलते हैं। Now inside the RBC, these merozoites will again convert into trophozoites, वो trophozoites में convert होंगे and then converts into शाइजॉन्ट्स, वो शाइजॉन्ट्स में convert होंगे और शाइजॉन्ट्स जो है फिर again merozoites में convert होगा, again merozoites में convert होंगे and these merozoites then will released into the circulation and RBC will rupture, RBC rupture होगा and merozoites will enter into circulation। जैसे ही आरबीसी रप्चर होगा, जैसे ही मीरोसाइट सर्कुलेशन में जाएंगे, अब बिकॉज टॉक्सिन्स आर रिलीज्ड इनटू द ब्लड एंड पैरासाइट्स आर रिलीज्ड इनटू ब्लड, नाउ पेशेंट विल शो द सिम्टम ऑफ द डिसीज। यहाँ डिसीज के सिम्टम, अगेन इफ यू टॉक अबाउट इरिथ्रोसाइटिक शाइजोगोनी, इट इज शॉर्टेस्ट इन केस ऑफ फैल्सिफेरम। ये फैल्सिफेरम के केस में शॉर्टेस्ट होगी, इट कैन बी फॉर 24 आवर्स and in case of vivax and oval it can be for 48 hours, while it takes 72 hours or more in case of the plasmodium malaria। again plasmodium malaria में इरिथ्रोसाइटिक शाइजोगोनी जो है वो डेफिनेटली लंबी चलेगी। इरिथ्रोसाइटिक शाइजोगोनी के बाद जो है हमको सिम्टम्स देखने आएंगे, मतलब इफ वी कैन से इंक्यूबेशन पीरियड की, इफ यू टॉक अबाउट इंक्यूबेशन पीरियड, देन अगर अपन इंक्यूबेशन के पीरियड की बात करें तो फैल्सिफेरम इट कैन बी अबाउट 10 days, 12 days about in case of vivax and oval, and malaria it can be of 15 days, 15 दिन तक का भी हो सकता है। तो पेशेंट को इतने दिन बाद जो है क्लिनिकल फीचर्स दिखाएंगे एंड द फर्स्ट क्लिनिकल फीचर ऑफ द डिसीज विल बी फीवर विद चिल्स एंड ड्राइकर। बुखार जो है वो कपकपी आएगी और जो है ठंड लगेगी, ये पहला सिम्टम। फीवर विल ग्रेजुअली इंक्रीज, बुखार बढ़ता जाएगा अबाउट फॉर 30 मिनट्स टू 2 आवर, 30 मिनट से 2 घंटे तक बढ़ता जाएगा, क्योंकि इस ड्यूरेशन में आरबीसी रप्चर कर रहे हैं, टॉक्सिन्स जा रहे हैं और फीवर प्रोड्यूस हो रहा है। फॉर 2 आवर्स बुखार चढ़ता जाएगा एंड आफ्टर 2 आवर्स देयर विल बी प्लेट्यू फॉर 8 to 9 आवर्स, 8 से 9 घंटे का जो है प्लेट्यू रह सकता है, 10 घंटे का रह सकता है एंड देन अगेन टेम्परेचर विल कम डाउन, टेम्परेचर कम डाउन होगा। एंड ड्यूरिंग दिस फेज नाउ जो मीरोजाइट्स आरबीसी में लिबरेट हो गए हैं, दे विल एंटर इनटू न्यू आरबीसी, नए आरबीसी में जाएंगे और नए आरबीसी में फर्दर जो है साइकिल चलती रहेगी। अगेन अपन देख रहे हैं साइकिल चलती रहेगी, पेशेंट का बुखार जो है वो नॉर्मल आ गया है, ये नॉर्मल से थोड़ा सा ऊपर रहेगा, आ गया है, और फिर ये अगेन जो है आरबीसी में जो मीरोसाइट्स हैं रप्चर करते रहेंगे और फिर एक नई साइकिल जो है चलेगी, बुखार की चलती रहेगी। आफ्टर 1 to 2 साइकिल्स, 1 से 2 साइकिल के बाद, सम ऑफ द मीरोसाइट्स गेट्स स्पेशलाइज्ड, कुछ मीरोसाइट्स स्पेशलाइज्ड हो जाएंगे टू फॉर्म मेल एंड फीमेल गेमेटोसाइट्स, वो मेल और फीमेल गेमेटोसाइट्स बनाएंगे। नॉर्मली मेल और फीमेल गेमेटोसाइट्स की रेशियो की बात करें तो 4 मेल गेमेटोसाइट्स पर 1 फीमेल गेमेटोसाइट्स यूजुअली बनता है। सो 4 मेल गेमेटोसाइट्स पर 1 फीमेल गेमेटोसाइट्स बनता है। नाउ आई कैन से दिस पर्सन इज इन्फेक्टिव एंड रेस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसमिशन ऑफ मलेरिया। हम ये कह सकते हैं कि ये व्यक्ति जो है अब मलेरिया के ट्रांसमिशन के लिए रिस्पॉन्सिबल, because mosquito bite in this person will responsible for the transmission of gametocytes into the mosquito। अब ये जो मॉस्किटो में अब ये मेल और फीमेल गेमेटोसाइट्स चले जाएंगे और ये मेल और फीमेल गेमेटोसाइट्स जो हैं वो इनमें मलेरिया मॉस्किटो में आफ्टर एंटरिंग इनटू द मॉस्किटो they will form zygote will be responsible for formation of ookinete and finally there will be a formation of sporozoites का formation। now sporozoites के formation तक, since the introduction of gametocytes and formation of the sporozoites, ये पीरियड जो है, इस पीरियड को हम कहते हैं extrinsic incubation period। why we are calling it as extrinsic incubation period? because it is not taking place in the human being, because it is not taking place in the human being, it is taking place in the mosquito, ये मच्छर में हो रहा है, तो इसको अपन एक्सटेंसिव इंक्यूबेशन पीरियड रहेंगे। टेक्स अबाउट दिस टाइम पीरियड टेक्स अबाउट से 10 to 12 days, 10 से 12 दिन लगेंगे
इसको मैच्योर होने में, स्पोरोजोइट्स को मैच्योर होने में। मच्छर का जो लाइफ स्पेन होता है, मच्छर का जो लाइफ स्पेन होता है, इट कैन बी एनी वेयर बिटवीन 10 to 30 days, 10 से 30 दिन तक हो सकता है। सो अगर अगर मच्छर की जिंदगी कम कर दें हम, अगर मच्छर की जिंदगी अगर मच्छर की हम कम कर दें, तो अगेन वी कैन प्रिवेंट द ट्रांसमिशन ऑफ मलेरिया, हम मलेरिया के ट्रांसमिशन को रोक सकते हैं। However, another method of malaria transmission prevention is कि वो व्यक्ति जिसको बुखार हुआ है, मलेरिया हो या ना हो, उसको अपन मच्छरदानी में सुला दें। सो मच्छरदानी में अगर इफ यू यूज मॉस्किटो नेट्स, तो अगेन ट्रांसमिशन जो है रुक सकता है। बट इफ वी टॉक अबाउट ड्रग्स, दवाइयों की बात करें जो ट्रांसमिशन को रोकने के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगी, देयर वेयर 2 ड्रग्स, 2 दवाइयां होंगी। एक तो आर्टिमसाइनिन्स, जो कि वन ऑफ द बेस्ट ड्रग्स हैं नाउ फॉर द मैनेजमेंट ऑफ मलेरिया, एंड सेकंड विल बी प्रीमाक्विन। दूसरी जो होगी प्रीमाक्विन होगी। प्रीमाक्विन एंड आर्टिमसाइनिन डेरिवेटिव्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर किलिंग गेमेटोसाइट्स। They are artemisinin are responsible for killing all the stages of gametocytes, and therefore these drugs are responsible for preventing transmission of malaria. और इन दवाइयों का उपयोग इसीलिए हम रेगुलरली अब करने लगे हैं टू कट डाउन दी साइकिल। साइकिल को अगर अपन कट डाउन कर देंगे तो बीमारी ऑफकोर्स जो है वो आगे फैलने से रुक जाएगी, अब बीमारी फैलने से रुक जाएगी। The third stage is called as post-erythrocytic phase। post-erythrocytic phase जो है ये कब आएगी और क्यों आएगी, अपन सोचें। Post-erythrocytic phase is observed in 2 types of malaria, Plasmodium ovale and Plasmodium vivax। vivax और ovale में ये अपने को जो है पोस्ट एर्थोसाइटिक फेज देखने में आएगा। होगा क्या कि पेशेंट को मलेरिया जो है जब चल रहा है, मलेरिया तभी दिखेगा जब ब्लड सर्कुलेशन में ये जो है अपने जो है ट्रोफोसाइट्स, मिरोसाइट्स, शाइजोट्स सब आ जाएंगे। तो फॉर एग्जांपल एक पेशेंट को हमने क्लोरोक्विन दे दिया, और क्लोरोक्विन जो है इट इज, और क्लोरोक्विन क्या करेगा, क्लोरोक्विन will responsible for killing all the phases which were present in the blood, and they are asexual phases. So it is very effective against asexual phases, but chloroquine is not effective against gametocytes। chloroquine gametocytes के against effective नहीं है, and it is also not effective against hypnozoids which are mainly responsible for post erythrocytic phase। हिप्नोसाइट्स के अगेंस्ट इफेक्टिव नहीं रहेंगी, जो कि पोस्ट एर्थ्रोसाइटिक फेज के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अब क्या है, पेशेंट को जब हम क्लोरोक्विन का मैनेजमेंट करेंगे, ट्रीटमेंट देंगे, तो पेशेंट बिल्कुल 3 दिन में ठीक हो जाएगा, 3-5 दिन में बिल्कुल ठीक हो जाएगा। मलेरिया उसके सर्कुलेशन में से पूरी तरह से जो है वो सर्कुलेशन में से पैरासाइट्स हट जाएंगे। बट सिंस दे आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर, दे आर नॉट इफेक्टिव अगेंस्ट हिप्नोसाइट्स, क्योंकि वो हिप्नोसाइट्स के अगेंस्ट इफेक्टिव नहीं है, इसलिए होगा क्या कि हिप्नोसाइट्स जो हैं वो लीवर में पड़े रहेंगे। अब क्या होगा, उस पेशेंट को 1 महीने बाद, 2 महीने बाद या 3 महीने बाद, जब भी कभी भी क्या हो सकता है, इसको वापस मलेरिया देखने में आएंगे। तो इट इज नॉट बीटन बाय मॉस्किटो, मच्छर ने काटा नहीं है फिर भी हो जाएगी, बिकॉज नाउ दिस हिप्नोसाइट्स बिकम एक्टिव। ये हिप्नोसाइट्स एक्टिव हो जाएंगे एंड विल रिस्पॉन्सिबल फॉर द साइकिल इन दी आरबीसी। ये हिप्नोसाइट्स मीरोसाइट्स में कन्वर्ट हो जाएंगे, और ये मीरोसाइट्स जो है आरबीसी में जाएंगे, और आरबीसी में ये रिस्पॉन्सिबल रहेंगे अगेन एक साइकिल। सो दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रिलैप्स ऑफ मलेरिया। मलेरिया के रिलैप्स अपन समझ ले फिर ओवेक्स और ओवेल और वाइवेक्स में होंगे। एंड सो टू प्रिवेंट ट्रांसमिशन ऑफ मलेरिया, टू प्रिवेंट रिलैप्स ऑफ द मलेरिया, हमको हिप्नोसाइट्स को किल करने के लिए दवा की जरूरत पड़ेगी, एंड दैट ड्रग विल बी प्रीमाक्विन। प्रीमाक्विन जो है एंड टेफिनोक्विन, प्रीमाक्विन एंड टेफिनोक्विन आर दी एजेंट्स, जो दवाइयां जो है हम मलेरिया के रिलैप्स को रोकने के लिए करेंगे ओवेक्स और ओवेल और वाइवेक्स। सो अगर अपन बात करें तो मेजॉरिटी ऑफ ड्रग्स जो हैं दे आर एक्टिंग ऑन आरबीसी फेजेस। एसेक्सुअल फेजेस जो आरबीसी में है उनके अगेंस्ट इफेक्टिव रहेंगे। मेजॉरिटी, मोर देन 90% ऑफ ड्रग्स विल बी इफेक्टिव अगेंस्ट एसेक्सुअल फेजेस। गेमेटोसाइट्स के अगेंस्ट इफेक्टिव रहने वाली आर्टिमसाइनिन्स और प्रीमाक्विन है। हिप्नोसाइट्स के अगेंस्ट इफेक्टिव होने वाली जो दवा है वो प्रीमाक्विन या टेफिनोक्विन है। जबकि अगर मलेरिया मान लीजिए मच्छर ने काट लिया है ना, आफ्टर बाइटिंग द स्पोरोसाइट्स विल एंटर इनटू द लीवर, एंड इन लीवर वी कैन आल्सो प्रिवेंट डिसीज। हम डिसीज को प्रिवेंट कर सकते हैं, बट ये बड़ी मुश्किल है कि यार मच्छर ने काटा और हमको पता लग जाए कि यार हमको लीवर में पैरासाइट आ चुके हैं, बिकॉज हमको वी डोंट हैव एनी क्लिनिकल सिम्टम्स।
सो यहाँ पर भी अपन लीवर में भी दैट इज प्री इरिथ्रोसाइटिक स्टेज में भी वी कैन प्रिवेंट द डिसीज, हम डिसीज को रोक सकते हैं बाय गिविंग अ ड्रग कॉम्बिनेशन दैट इज प्रोगुआनिल एंड एटोवोकॉन। प्रोगुआनिल और एटोवोकॉन को अगर अपन दे दें तो एक्सपोजर होने के बाद हम जो है बीमारी को रोक सकते हैं। हाउएवर इट इज वेरी डिफिकल्ट, ये पहचानना बड़ा मुश्किल है। यहाँ पर मैं आपको बता दूं, नो ड्रग इज इफेक्टिव, नो ड्रग इज इफेक्टिव अगेंस्ट स्पोरोजोइट्स, नो ड्रग इज इफेक्टिव अगेंस्ट स्पोरोजोइट। स्पोरोजोइट के अगेंस्ट कोई भी दवा इफेक्टिव नहीं, स्पोरोजोइट्स के अगेंस्ट कोई भी दवा इफेक्टिव नहीं है, ये मालूम होना चाहिए। तो एटोवोकॉन और प्रोगुआनिल कॉम्बिनेशन जो लीवर में ऐड कर रहा है, वो लीवर में जो ऐड कर रहा है वो उनके बाकी के फेजेस में, मतलब ट्रोफोसाइट्स और मीरोसाइट्स को किल करने के लिए रिस्पॉन्सिबल रह सकता है। तो मलेरिया के एक्सपोजर के बाद अगर अपन मलेरिया को रोकते हैं तो ऐसे ऐसे स्टेज को हम बोलेंगे कॉजल प्रोफाइलेक्सिस। जैसे प्रोफाइलेक्सिस को क्या बोलेंगे, कॉजल प्रोफाइलेक्सिस, मतलब हम कॉज को रोक रहे हैं बीमारी के ट्रांसमिशन। So now moving on to the classification. सो ऐसी दवाइयां जो प्रीथोसाइटिक फेज पर काम करेंगी, जैसा मैंने बता दिया आपको, जो है सच प्रोफाइलेक्सिस इज कॉल्ड एज कॉजल प्रोफाइलेक्सिस। और उसके लिए जो अपन दवा उपयोग कर में लाएंगे दैट विल बी प्रीमाक्विन, है ना, सॉरी वेरी सॉरी, प्रोगुआनिल एंड एटोवोकॉन कॉम्बिनेशन का जो है अपन उपयोग करेंगे। Now, drugs acting on erythrocytes, they are effective against all the asexual forms like trophocytes, chyazones and merocytes, and some of the merocytes ये अपन बात कर चुके हैं asexual form में, and gametocytes will be responsible. Majority of drugs acts on asexual form of erythrocytic stage of parasite, that is chyazones and trophocytes. Now drugs acting on asexual forms of erythrocyte, आप केमिकल क्लासिफिकेशन बिल्कुल मत याद रखिए, वो डिफिकल्ट होता है याद रखने में, उसको कोई बेसिक सिग्निफिकेंस नहीं। Chloroquine, amiodarone, piperacin, they are the drugs which are very effective still, but they are preferred. Chloroquine again is a gold standard drug, still preferred against Vivex and Ovel malaria. Vivex, Ovel और अगर मैं बोलूं तो Vivex और Ovel के अलावा मलेरिया के अगेंस्ट भी इफेक्टिव है। बट इफ यू टॉक अबाउट फेल्सिपेरम एंड नोलेजी, फेल्सिपेरम और नोलेजी की बात करें तो हमको फिर जो है आर्टिमसाइनिन कॉम्बिनेशन थेरेपी पे जाना पड़ेगा। हाउएवर इंडियन सब कॉन्टिनेंट में आजकल आर्टिमसाइनिन कॉम्बिनेशन थेरेपी इज अगेन प्रिफर्ड ओवर क्लोरोक्विन। अगर कोई भी टाइप का मलेरिया है, तो किसी भी टाइप का मलेरिया है तो आर्टिमसाइनिन कॉम्बिनेशन को ही हम प्रिफर कर रहे हैं, बिकॉज हम मलेरिया को पूरी तरह से हटाना चाहते हैं। तो ये कॉम्बिनेशन जो है आजकल फिर कॉमनली यूज करें। क्विनाइन सिंकोना बार्क से यूज होने वाली बहुत पुरानी दवा थी, स्टिल जो है बहुत रेयरली यूज होती है, कम यूज होती है, बिकॉज इट हैज सो मेनी इनटॉलरेबल एडवर्स इफेक्ट्स। सिंकोनिज्म तो बहुत कॉमनली इसमें होता ही है, और जो है ओटोटॉक्सिसिटी ऐसी हो सकती है कि जो रिकवर ना कर पाए पेशेंट। मेफ्लोक्विन अगेन इज इफेक्टिव अगेंस्ट मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट फैल्सिफेरम मलेरिया, बट इसका एक बहुत डेंजरस क्लिनिकल फीचर है और वो सीजर्स झटके करा सकता है। और आपको यहाँ पर एक बार मालूम होना चाहिए, इफ ए पेशेंट वाज गिवन क्लोरोक्विन अर्लियर, पेशेंट को क्लोरोक्विन अर्लियर अगर दे चुका है तो देयर मस्ट बी एटलीस्ट गैप ऑफ 24 आवर्स while गिविंग मेफ्लोक्विन। तो क्लोरोक्विन और मेफ्लोक्विन के डोज में 24 घंटे का अंतर होना चाहिए, बिकॉज क्लोरोक्विन इटसेल्फ इज हैविंग रिस्क ऑफ सीजर, झटका करा सकती है, झटके करा सकती है, कन्वर्जेंस करा सकती है, एंड देयरफॉर मिनिमम 12 to 24 आवर्स का तो गैप रखें। अगर क्लोरोक्विन पहले से पेशेंट को दे चुके हैं तो मेफ्लोक्विन देना है। सल्फाडॉक्सिन पायरिमिथामिन फिक्स डोज कॉम्बिनेशन 1575 मिलीग्राम, 1500 मिलीग्राम सल्फाडॉक्सिन और पायरिमिथामिन 75 मिलीग्राम, लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ एक्शन, स्टिल वेरी गुड drug which is given in combination with artemisinin for the management of falciparum malaria and multi-drug resistant malarias. Artemisinin derivatives, best agent is still most effective, artemisinins, artesunate, artemether, artether, ये दवाइयां अपन उपयोग करते हैं। इन दवाइयों का रेजिस्टेंस अभी एक मेकॉन्ग आइलैंड है, मेकॉन्ग आइलैंड में जो है आर्टिमसाइनिन डेरिवेटिव्स का रेजिस्टेंस देखा गया है, और वहां पर बहुत सारे पेशेंट जो है 3 दिन में जो है वो रिकवर नहीं कर पाते हैं, तो वहां पर जो है पेशेंट को जो है 5 दिन या इवन 7 दिन तक का जो है दवा अपने को देना पड़ता है। Lumefantrine is the drug which is again combined with the artemisinin derivatives, ये artemisinin derivatives के साथ जो है कंबाइन की जाती है।
आर्टिमिसानिन डेरिवेटिव्स के साथ कंबाइन की जाती है। एलोन ये दवा मलेरिया के लिए अपन प्रिस्क्राइब नहीं करते हैं। प्रोगवानिल एटोवाकोन combination, which is one of the combination which is given against falciparum malaria and for causal prophylaxis। ये अपने को अपन जो है कॉजल प्रोफाइलेक्सिस या फैल्सिपरम मलेरिया के लिए लेते हैं। दो अगर आपको बताऊं कि अगर इस दवा को अलोन अपन यूज करेंगे तो रेजिस्टेंस बहुत रैपिडली इसका डेवलप होता है, एंड बिकॉज रेजिस्टेंस इज डेवलप्ड रैपिडली दिस कॉम्बिनेशन इज नॉट नाउ वेरी कॉमनली यूज नहीं होता, बट स्टिल इंपॉर्टेंट है, याद रखें। If we talk about antibiotics, then tetracyclines, doxycycline, clindamycin are effective against the malarial parasites। मलेरियल पैरासाइट्स के अगेंस्ट इफेक्टिव है और उपयोग की जाती है कॉम्बिनेशंस में। ऑफ कोर्स कॉम्बिनेशंस में यूज की जाती है, दे आर नॉट यूज्ड अलोन इनका उपयोग हम बिल्कुल नहीं करते हैं। नाउ some drugs are specially effective, as I already told you, बता चुके हैं। some drugs are specially effective against gametoside stage and helpful in preventing transmission of malaria, and that is primaquine and artemisinin derivatives। Nowadays falciparum मलेरिया में अपन आर्टिमिसानिन कॉम्बिनेशन के साथ 2 डोज प्रीमाक्विन देते हैं, सिंगल डोज, है ना, ध्यान से सुनो। Nowadays for eradication of falciparum malaria, along with artemisinin combination therapies के साथ हम लो डोज प्रीमाक्विन भी अब जो है पेशेंट को देते हैं, एंड दैट लो डोज इज 0.25 मिलीग्राम पर केजी बॉडी वेट, सिंगल डोज 0.25 मिलीग्राम पर केजी बॉडी वेट सिंगल डोज देते हैं। मतलब अगर इसको मैं वेट के हिसाब से, अगर एडल्ट के हिसाब से कैलकुलेट करूं तो 15 मिलीग्राम की सिंगल डोज, 15 मिलीग्राम सिंगल डोज जो है वो सफिशिएंट रहेगी, सिंगल डोज। और ये क्यों दे रहे हैं, अगेन आप समझ सकते हैं, बिकॉज प्रीमाक्विन इज इफेक्टिव अगेंस्ट गेमेटोसाइट्स, क्योंकि फैल्सिपरम में कोई हिप्नोटाइड स्टेज तो है, तो हिप्नोसाइट्स के अगेंस्ट तो हमको देना नहीं है, तो प्रीमाक्विन का यहाँ जो देने का बेसिस है दैट इज किलिंग ऑफ गेमेटोसाइट्स। आप बोलेंगे कि आर्टिमिसानिन तो किल कर ही रहे हैं गेमेटोसाइट्स को, लेकिन अपन देखें तो 2 दवाइयां मिलेंगे तो 2 दूना 4 हो जाएगा और इफेक्ट और क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। देन ड्रग्स इफेक्टिव अगेंस्ट एक्सोएक्सोसाइटिक फेज, जिसको कि अपन बोल सकते हैं हिप्नोसाइट्स के अगेंस्ट। अपन ओवेल और वाइवेक्स में अपन, मैंने आपको बताया कि ये स्टेज अपने को देखने में आती है। और प्रीमाक्विन और टेफिनोक्विन ये दवाइयां जो हैं जो अवेलेबल है मार्केट में, दे आर इफेक्टिव अगेंस्ट द हिप्नोसाइट स्टेज। हाउएवर प्रीमाक्विन के साथ लॉन्ग टर्म देने पर देयर इज रिस्क ऑफ G6PD डेफिशिएंसी एनीमिया। प्रीमाक्विन के साथ G6PD डेफिशिएंसी एनीमिया की रिस्क होती है। टेफिनोक्विन के साथ ये रिस्क काफी कम देखने में आई है, बट डेफिनेटली प्रीमाक्विन के साथ देखने में आती है, स्पेशली इन द अफ्रीकन कंट्रीज वेयर G6PD डेफिशिएंसी एनीमिया इज वेरी प्रिवेलेंट। कहाँ पर, अफ्रीकन कंट्रीज में, क्योंकि G6PD एनीमिया काफी प्रिवेलेंट है, एंड इट गिव्स पार्शियल प्रोटेक्शन अगेंस्ट मलेरिया ऑल्सो। मलेरिया के अगेंस्ट G6PD एनीमिया जो है पार्शियल प्रोटेक्शन देता है। इसके अलावा अपन देखें कि हेरिडिटरी स्पिरोसाइटोसिस, सिकल सेल एनीमिया, थैलेसेमिया, these hemolytic disorders also gives prophylaxis, or say I'm not saying prophylaxis, gives partial prevention against malaria। इसी तरह से बताऊं कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनमें डफी नेगेटिव एंटीजन होते हैं। जो डफी एंटीजन जो है वो आरबीसी में पाया जाने वाला एंटीजन है, जिससे वाइवेक्स मलेरिया के जो पैरासाइट्स हैं वो बाइंड करते हैं, है ना। सो डफी एंटीजन इज एन एंटीजन प्रेजेंट ऑन द आरबीसी टू विच वाइवेक्स मलेरियल पैरासाइट बाइंड्स। वाइवेक्स मलेरियल पैरासाइट बाइंड करते हैं, एंड दोज पर्सन हु आर डफी नेगेटिव, ऐसे व्यक्ति जो डफी नेगेटिव एंटीजन के वाले होते हैं, मतलब जिनमें डफी एंटीजन नहीं होता है, उनमें वाइवेक्स मलेरिया नहीं पाया जाता है। तो ये बात कॉम्पिटिटिव एग्जाम के हिसाब से ध्यान रखेंगे। सो दोज पेशेंट्स हु आर हैविंग हेरिडिटरी स्पिरोसाइटोसिस, G6PD डेफिशिएंसी एनीमिया, सिकल सेल एनीमिया, थैलेसेमिया, they get partial prevention against falciparum malaria and other malaria also। सो नाउ मैकेनिज्म, कुछ कॉमनली यूज्ड एजेंट की बात करें। सारी की दवाइयों के अपने को मैकेनिज्म एग्जाम में याद रखने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, कोई कहानी अपने को कहनी नहीं। क्लोरोक्विन, क्विनाइन, मेफ्लोक्विन, लुमेफेंट्रिन, ये दवाइयां एक ही तरह से काम करती हैं। पैरासाइट के लिए, पैरासाइट कहाँ जा है हमारा, आरबीसी में। आरबीसी में क्या है, हीमोग्लोबिन। सो वेयर पैरासाइट्स आर प्रेजेंट इन द आरबीसी, एंड इन आरबीसी देयर इज हीमोग्लोबिन, एंड हीमोग्लोबिन इज टॉक्सिक टू पैरासाइट। हीमोग्लोबिन जो है पैरासाइट्स के लिए टॉक्सिक है।
सो पैरासाइट्स अपने आप को बचाने के लिए क्या करते हैं? व्हाट पैरासाइट्स डू टू कीप देमसेल्व्स अलाइव? व्हाट पैरासाइट्स विल डू टू कीप देमसेल्व्स अलाइव? दे विल कन्वर्ट हीम इनटू हीमोजाइन। वो हीम को हीमोजाइन में कन्वर्ट कर देंगे, हीम को हीमोजाइन में कन्वर्ट कर देंगे, और हीमोजाइन जो इट इज नॉन टॉक्सिक, हीमोजाइन नॉन टॉक्सिक होगा और इस तरह से अपनी जान को बचा के रखेंगे। तो पैरासाइट्स के लिए हीम टॉक्सिक है, तो वो क्या करेंगे? हीम को हीमोजाइन में कन्वर्ट कर। बस ये जो दवाइयां ये क्या करेंगी? दे विल प्रिवेंट कन्वर्शन ऑफ हीम इनटू हीमोजाइन। ये दवाइयां हीम को हीमोजाइन में प्रिवेंशन में क्या कर देंगे? को प्रिवेंट कर देंगी। हीमोजाइन नहीं बनेगा, हीम रहेगा, और हीम के कारण जो है पैरासाइट्स की किलिंग हो जाएगी। बड़ा सिंपल मैकेनिज्म, बहुत आसान है। मतलब दवाइयां क्या कर रही हैं? हीम से हीमोजाइन के कन्वर्शन को रोक रही हैं, और वो हीम जो है फिर वो सफिशिएंटली रिस्पॉन्सिबल रहेगा पैरासाइट्स को किल करने के। ना सबसे इंपॉर्टेंट ड्रग जिसकी अपन बात, जैसे अभी मैंने आपको ये डायग्राम में बताया कि कैसे दवा ऐड कर रही हैं, तो क्लोरोक्विन, मेफ्लोक्विन, ये सब दवाइयां बहुत बेसिक होती हैं, हाईली बेसिक, हाईली अल्कलाइन होती हैं। दे आर वेरी अल्कलाइन इन नेचर, एंड देयरफॉर बिकॉज दे आर वेरी अल्कलाइन इन नेचर, प्लाज्मोडियम में जो है वेसाइकल जो है एसिडिक वेसाइकल है, तो ये क्लोरोक्विन जो है उसके एसिडिक वेसाइकल में जाके घुस जाएगा। क्यों? क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा हो जाएगा, बिकॉज क्लोरोक्विन जो है अल्कलाइन है और वेसिकल जो है एसिडिक है। सो द क्लोरोक्विन और मेफ्लोक्विन और क्विनाइन और लुमेफेंट्रिन, दे विल गेट कॉन्सेंट्रेटेड इन द एसिडिक वैक्यूल। वो एसिडिक वैक्यूल में कॉन्सेंट्रेट कर जाएंगे, एंड यू कैन सी दिस विल प्रिवेंट कन्वर्शन ऑफ हीम इनटू हीमोजाइन। अब ये जो जो अपना क्लोरोक्विन है, ये हीम से हीमोजाइन के कन्वर्शन को रोक देगा, एंड हीम बीइंग टॉक्सिक विल किल द पैरासाइट। वो पैरासाइट्स को क्या कर देगा? किल कर देगा। ना अनदर वेरी इंपॉर्टेंट, जो सबसे बढ़िया एजेंट है आज की तारीख में, बोलूंगा गोल्ड स्टैंडर्ड ये हो गई है ना। फार्माकोलॉजी बदलती रहती है, मेडिसिन बदलती रहती है। जो क्लोरोक्विन की जो जगह थी, मैं ऐसा बोलूंगा, जो प्लेस ऑफ क्लोरोक्विन इज नाउ ऑक्यूपाइड बाय आर्टिमिसाइनिन्स। क्लोरोक्विन की जगह किसने? क्लोरोक्विन की कुर्सी पे अब कौन बैठ गया है? अब ये जो बैठ गया है, ये आर्टिमिसाइनिन डेरिवेटिव्स बैठ गए हैं। दे आर एक्सीलेंट एजेंट फॉर द मैनेजमेंट ऑफ मलेरिया, एंड देयरफॉर इन अवर कंट्री आल्सो मलेरिया इज इन द डिक्लाइन। मलेरिया अब जो है धीरे धीरे कम हो रहा है, ऐसा नहीं बोलूंगा खत्म हो गया, स्टिल देर आर वेरी कॉमन। मलेरिया इज वेरी कॉमन, बहुत कॉमन है। ऐसा नहीं बोलेंगे कि खत्म हो गया, ऐसा नहीं बोलेंगे कि खत्म हो गया। आर्टिमिसाइनिन डेरिवेटिव्स में अगर उनके केमिकल स्ट्रक्चर में देखें, तो एक पेरोक्साइड ब्रिज होता है। जैसे पेरोक्साइड ब्रिज, पेरोक्साइड आप समझते हैं, 12वीं कक्षा में अपन ने पढ़ा हुआ है ना। पेरोक्साइड ब्रिज मतलब एक ऑक्सीजन ब्रिज है, ऑक्सीजन ब्रिज है। अब ये ऑक्सीजन ब्रिज जो है, अगेन दवा जो है इनके पैरासाइट के डाइजेस्टिव वैक्यूल में जाएगी, है ना, पैरासाइट के डाइजेस्टिव वैक्यूल में जाएगी, बिकॉज ये हाईली एसिडिक है, अभी अपन ने देखा। सो heme iron produced inside the highly acidic digestive vacuole of parasite cleaves the drug peroxide bridge। ये ड्रग peroxide bridge को क्या कर देगा? ब्रेक कर देगा, ठीक है ना। अब ये जो हीम, जो टॉक्सिक हीम एडक्ट फॉर्मेशन जो होगा, peroxide ऑक्सीजन के कारण होगा। तो क्या हुआ? हीम आयरन जो जो इनसाइड बना हुआ है ना हमारे ब्लड में, जो हीम आयरन है वो हाईली एसिडिक वैक्यूल में जाएगा। हाईली है ना, ये वेसिकल में जाने के बाद क्या करेगा? वेसिकल में जाने के बाद वहां पर दवा कौन पहुंच चुकी है? अपनी आर्टिमिसाइनिन पहुंच चुकी है। वहां पर जो आर्टिमिसाइनिन डेरिवेटिव आर्टिमिसाइनिन है, उसमें जो पेरोक्साइड ब्रिज है उसको कैंची की तरह ही काट के अलग कर देगा। ना ये पेरोक्साइड ब्रिज जो है, इसके साथ ये जो पेरोक्साइड ब्रिज जो है, इसके साथ जो टॉक्सिक हीम बाइंड कर जाएगा और एडिशनल टॉक्सिक प्रोडक्ट बनेंगे। ये एडिशनल टॉक्सिक प्रोडक्ट जो है, ये रिस्पॉन्सिबल रहेंगे किसको? अपने पैरासाइट को किल करने के लिए, बिकॉज दे विल रिस्पॉन्सिबल फॉर जनरेशन ऑफ फ्री रेडिकल्स। वो फ्री रेडिकल्स का जनरेशन कराएंगे, विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑक्सीडाइजिंग मैक्रोमोलिक्यूल्स इन द पैरासाइट। जो मैक्रोमोलिक्यूल्स हैं ऑक्सीड जो पैरासाइट में, उसको क्या कर देंगे? ऑक्सीडाइज कर देंगे, उनको खत्म कर देंगे, और पैरासाइट खत्म। सो अगर मैं बोलूँ तो इसमें इफेक्टिव एजेंट कौन है? इनमें आर्टिमिसाइनिन में इफेक्टिव मोइटी कौन है? वो है पेरोक्साइड ब्रिज, जो वो ऑक्सीजन है, वो रिस्पॉन्सिबल है। They are fastest acting agent. They are fastest acting agent, but they have very short duration of action. ये फास्टेस्ट एक्टिंग एजेंट है, लेकिन इनका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन भी शॉर्ट है। ये समस्या है हमारे साथ ये समस्या है कि इनका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन शॉर्ट है। फास्टेस्ट एक्टिंग हमारे लिए फायदा है,
लेकिन ड्यूरेशन ऑफ एक्शन शॉर्ट है, ये नुकसान हो सकता है। बोले सर क्यों नुकसान हो सकता है? क्योंकि मान लीजिए कि अगर 3 दिन का ट्रीटमेंट दिया और पैरासाइट नहीं मरे, है ना, मान लीजिए नहीं मरे, या ऐसा हो जाए कि पैरासाइट किसी तरह से बच गए, कहीं रह गए अंदर और बच गए, तो अब क्या होगा कि दवा का असर तो खत्म हो गया 3 दिन में। और दवा का जब असर खत्म हो गया तो नाउ दीज पैरासाइट्स कैन अगेन डिवाइड एंड रेस्पॉन्सिबल फॉर दी मलेरिया, वो मलेरिया के लिए रिस्पॉन्स। ऐसी केसेस में होता क्या है कि पेशेंट को 2-3 दिन में बुखार वुखार सब उतर जाएगा, पेशेंट बहुत बेहतर फील करे, बट अगेन आफ्टर 2 to 3 days, 2 से 3 दिन बाद वापस पेशेंट को बुखार चढ़ जाएगा, बिकॉज जो पैरासाइट, द रिमेनिंग पैरासाइट्स, है ना, विच वेर देयर, द रिमेनिंग पैरासाइट्स विच वेर देयर विल अगेन प्रोलिफरेट एंड रेस्पॉन्सिबल फॉर फ्रेश साइकिल ऑफ मलेरिया। जो पैरासाइट बचे हुए थे वो फिर डिवाइड करेंगे, वो फिर मल्टीप्लाई करेंगे, सॉरी, और मल्टीप्लाई करने के बाद जो है वो फ्रेश साइकिल जो है मलेरिया की स्टार्ट करेंगे। दिस इज कॉल्ड एज रिक्रूडिसेंस, इसको अपन रिक्रूडिसेंस बोलते हैं। तो रिक्रूडिसेंस जो है अपने को किस में देखने में आता है? रिक्रूडिसेंस मोस्ट कॉमनली ऑब्जर्व विद फेल्सीबरम मलेरिया। फेल्सीबरम मलेरिया के साथ रिक्रूडिसेंस देखने में आता है। और फेल्सीबरम के अलावा रिक्रूडिसेंस इज आल्सो ऑब्जर्व विद प्लाज्मोडियम मलेरिया। प्लाज्मोडियम मलेरिया के साथ देखने में आता है। तो अब एक कॉन्सेप्ट दिमाग में रख लें, रिलैप्स किससे देखने में आएगा? ओवेल और बाइबेक्स से। जबकि रिक्रूडिसेंस किससे देखने में आएगा? फेल्सीबरम और मलेरिया से। अरे ये देखा गया है कि मलेरिया का रिक्रूडिसेंस 1 साल के बाद भी हो सकता है, एंड आई एम नॉट श्योर कि कैसे हो सकता है, बट हेरिसन की किताब में लिखा हुआ है कि प्लाज्मोडियम मलेरिया से जो मलेरिया हुआ है उसका रिक्रूडिसेंस 1 साल बाद भी देखने में आ सकता है। तो क्यों देखने में आ सकता है, कैसे देखने में आ सकता है? आई डिड नॉट फाइंड द आंसर, बट मैं आपको क्वेश्चन बता दे रहा हूँ, ऑब्जेक्टिव के लिए ध्यान में रखेंगे। सो रिक्रूडिसेंस फेल्सीबरम से और मलेरिया से होगा, जबकि रिलैप्स जो है वो बाइबेक्स और ओवेल से होगा। इसी कारण से, बिकॉज दे हैव शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ एक्शन, बिकॉज दीज एजेंट्स हैव शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ एक्शन, इट इज ऑलवेज, these agents are always combined with those agents which are having long duration of action। इन दवाइयों को अक्सर उन दवाइयों से कंबाइन किया जाता है, इनका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन लंबा है, क्योंकि अगर मान लीजिए कुछ पैरासाइट रह भी गए तो ये उसको खत्म कर देंगे। एंड सेकेंड थिंग, दे आर आल्सो यूजफुल इन प्रिवेंटिंग रेजिस्टेंस अगेंस्ट आर्टिमसाइनिन्स। ये दवाइयां जो है आर्टिमसाइनिन्स के अगेंस्ट रेजिस्टेंस को रोकने में भी हेल्पफुल रहेंगी। and that is why and that is why artemisinin are always given in combination. They are always given in combination with long acting agents. Long acting agents is a sulfadoxine pyrimethamine, longer acting agent. Piperacin, very long acting, yahan yaad rakhein, piperacin is the anti-malaria agent which is having longest duration of action. It has longest duration of action, बहुत लंबा ड्यूरेशन है, 35 to 40 days जो है एक बार दवा देने के बाद मेंटेन रह सकता है। It can maintain for 35 to 40 days, we can imagine. So we'll combine with them with the long acting agents. Lumefantrine के साथ combine कर देंगे, sulfadoxine pyrimethamine के साथ combine कर देंगे, arteroline के साथ अपन combine कर देंगे, mefloquine which is also longer acting agent उसके साथ combine कर देंगे, and such combinations are called as artemisinin combinations. So जैसा कि भी आपको मैंने explain किया था कि ये कैसे जो है काम करेगा, तो अगर अपन देखें तो ये आर्टिमसाइनिन्स में जो है, जो हमारा रिड्यूस्ड हीम है वो आर्टिमसाइनिन के जो है ऑक्सीजन जो परऑक्साइड ब्रिज को जो है वो जो है कट कर देगा, और हीम के साथ एडिशन प्रोडक्ट्स जो है वो परऑक्साइड के ब्रिज के बन जाएंगे। तो हीम में जो ऑक्सीजन बाइंड करेगा दैट विल रिस्पॉन्सिबल फॉर एडिशन कंपाउंड्स, एंड दीज एडिशन कंपाउंड्स विल रिस्पॉन्सिबल फॉर जनरेशन ऑफ फ्री रेडिकल्स। वो फ्री रेडिकल्स के जनरेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल रहेंगे एंड विल रिस्पॉन्सिबल फॉर किलिंग ऑफ पैरासाइट्स। ना कुछ छोटे मोटे शॉर्ट नोट्स की बात कर ले अपन, सारे की बात अपन नहीं करेंगे डेफिनेटली, क्योंकि हम जो है मैनेजमेंट पर ज्यादा ध्यान दें बजाय की। क्लोरोक्विन एंड हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन, अगेन दिस इज इंपॉर्टेंट पार्ट, एंड व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन क्लोरोक्विन एंड हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन। तो फर्स्ट मैं आपको पहले बता दूं कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन क्लोरोक्विन एंड हाइड्रोक्सी। क्लोरोक्विन, you must know that it has highest volume of distribution. It has tendency to get deposited in various tissues in the body. क्लोरोक्विन का हाईएस्ट वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, इट इज अबाउट 13 to 13.5 thousand लीटर, 13 से 13,500 लीटर इसका apparent volume of distribution है। We can imagine such a broad volume of distribution, and therefore the drug has tendency to get deposited in various tissues where if they are given for long period of time, लंबे समय तक अगर देंगे तो टिश्यूज में डिपॉजिट होती जाएगी।
तो यार बोले क्लोरोक्विन लंबे समय तक कहाँ देंगे, तो क्लोरोक्विन लंबे समय तक बोले मलेरिया तो बहुत 3 दिन की बीमारी है उसमें दे देंगे, बट क्लोरोक्विन also possess anti-inflammatory property. It is also having anti-inflammatory and immunomodulatory property. क्लोरोक्विन की एंटी इन्फ्लेमेटरी और इम्यूनोमॉड्यूलेटरी प्रॉपर्टी भी है, जिसके कारण कि हम इसको कुछ ऑटोइम्यून डिसीजेस में या डिसीज विच आर इम्यून मॉड्यूलेटेड डिसीज है, इम्यून मॉड्यूलेटेड डिसीज है या इम्यून मीडिएटेड डिसीज है, वहां इनका उपयोग करेंगे। अब क्लोरोक्विन का उपयोग करने में जो सबसे बड़ी समस्या जो आने वाली है, डिपोजिशन इन द वेरियस टिश्यू, और उनमें सबसे ज्यादा समस्या आने वाली है रेटिना में। रेटिना में they will get deposited, and in retina if they get deposited they can even responsible for permanent blindness हो सकती है। और अभी एक क्वेश्चन जो अपन ने देखा कि बुल्स आई मैक्यूलोपैथी, क्लोरोक्विन बुल्स आई मैक्यूलोपैथी कराता है, एंड बुल्स आई मैक्यूलोपैथी जो है वो क्लोरोक्विन का एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। क्लोरोक्विन आल्सो गेट डिपॉजिटेड इन द कॉर्निया, कॉर्निया में भी डिपॉजिट होता है, हाउएवर इट इज हार्मलेस, ये हार्मलेस। और भी जगह पर क्लोरोक्विन डिपॉजिट है, बट द डेंजरस मोस्ट डेंजरस व्यू पॉइंट जहां पर अपन देखें लॉन्ग टर्म देने पर वो है आईज जो है, एंड दैट इज व्हाई इन प्लेस ऑफ क्लोरोक्विन वी यूज हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन। हम हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन का यूज करते हैं बिकॉज इट इज मोर वाटर सॉल्युबल, एंड इट हैज लेस टेंडेंसी टू गेट डिपॉजिटेड इन द वेरियस टिश्यूज। ये ज्यादा वाटर सॉल्युबल होती है और इसलिए टिश्यूज में इसका डिपोजिशन जो है टेंडेंसी काफी कम होती है। And therefore, whenever we want to give such drugs for long period of time, we will always prefer hydroxychloroquine over chloroquine. So chloroquine अपन short term के लिए चल जाएगी, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन हम लॉन्ग टर्म के लिए देंगे। दूसरे अर्थों में बोलूं कि हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन हम लॉन्ग टर्म कंडीशंस में यूज करेंगे, क्लोरोक्विन हम शॉर्ट टर्म कंडीशंस में यूज करेंगे। स्टिल इट इज वन ऑफ द मोस्ट इफेक्टिव एंड सेफेस्ट ड्रग, लेकिन अब इस कहानी को अगेन मैं बोल दूं बदल जाएगी, क्योंकि आर्टिमिसाइनिन्स आर स्टिल मोर सेफर व्हेन कंपेयर्ड विद द क्लोरोक्विन फॉर द मैनेजमेंट ऑफ मलेरिया। इट इज इफेक्टिव अगेंस्ट ऑल द स्पीशीज एक्सेप्ट प्लाज्मोडियम फैल्सिपेरम एंड आल्सो आई शुड से प्लाज्मोडियम नोलेज। प्लाज्मोडियम नोलेजी के अगेंस्ट भी इसकी इफेक्टिवनेस नहीं है, इसीलिए इन दो कंडीशन में हैरिसन की किताब लिखती है कि इन दो कंडीशन में हमको जो है वो क्या यूज करना है, हमको यूज करना है आर्टिमिसाइनिन कॉम्बिनेशन थेरेपीज। बट एज आई टोल्ड यू, हमारे देश में भी अब कोई भी टाइप का मलेरिया हो, हम आर्टिमिसाइनिन कॉम्बिनेशन पर ही जाते हैं। बात कर चुके हैं सेक्सुअल फॉर्म्स के अगेंस्ट इफेक्टिव, हिप्नोसाइड्स गैमेटोसाइड्स के अगेंस्ट नो इफेक्ट है। अदर एक्शंस की बात करें जो कि इसके इम्यून मॉड्यूलेशन, ये इम्यूनो मॉड्यूलेटर है, और एंटी इन्फ्लेमेटरी, और इसी के कारण इसका नॉन मलेरियल यूजेस बहुत ज्यादा है। वेल अब्जॉर्ब्ड ओरली, इंट्रामस्कुलर इंट्रामीन्स इंजेक्शन शुड बी अवॉइडेड। मैं आपको एक ही कॉन्सेप्ट बताऊंगा, पेशेंट अगर कॉन्शियस है, पेशेंट अगर मलेरिया का पेशेंट कॉन्शियस है, ऑलवेज गो फॉर ओरल रूट। If patient is conscious, always prefer oral route. Oral route prefer करेंगे because oral route is safer. Oral route is safer, always safer. Chloroquine intramuscular IV बहुत अवॉइड करेंगे because severe neurological complications हो सकते हैं, झटके आ जाएंगे, मौत हो जाएगी पेशेंट की। Another problem with the chloroquine is that they are responsible for QT prolongation. ये QT prolongation भी करा सकते हैं। High dose chloroquine itself can cause hemolysis in G6PD deficiency anemia. हाई डोज क्लोरोक्विन का जो है खुद भी G6PD एनीमिया करा सकता है। सो इफ यू टॉक अबाउट टॉक्सिसिटीज की बात करें, ऑब्जर्व्ड इन केस ऑफ IV एडमिनिस्ट्रेशन, 5 ग्राम से ज्यादा क्लोरोक्विन मौत करा देगी, मर जाएगा पेशेंट। और 5 मिलीग्राम कोई बहुत ज्यादा नहीं है। अगर 5 ग्राम अगर अपन पेशेंट जाती है तो ये दवा जो है लीथल हो सकती है। सब ये कॉम्प्लिकेशन जो भी आप देख रहे हैं, दे आर मोर कॉमन व्हेन गिवन पैरेंटरली। जब पैरेंटरली देंगे तभी आएंगे, लाइक हाइपोटेंशन, ब्रेडिकार्डिया, वाइड क्यूरस इंटरवल। और क्यूरस अगर वाइड हो जाएगा तो QT वाइड हो ही जाएगा, अपन समझ सकते हैं। एंटी वेव अबनॉर्मलिटीज रेस्पॉन्सिबल फॉर कार्डियक अरेस्ट। इसीलिए क्या हुआ था कि कोविड पेशेंट में सबसे पहली दवा जो अपने को हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन इफेक्टिव पाई गई थी, बट इतना भी इफेक्ट नहीं था बिकॉज कि वो बहुत पेशेंट बच जाते हैं
इनफैक्ट कॉम्प्लिकेशंस जो हैं, डेडली कॉम्प्लिकेशन जैसे कार्डियक अरेस्ट वाला कॉम्प्लिकेशंस एकदम से बढ़ गए, एंड द ड्रग वाज बैंड फॉर यूज इन कोविड इन्फेक्शन, और इसलिए कोविड इन्फेक्शन में इसको बैन कर दिया गया। नौशिया वॉमिटिंग क्लोरोक्विन से बहुत कॉमन होती है, गैस्ट्रिक डिस्कम्फर्ट बहुत कॉमन होता है। इसको अवॉइड करने के लिए और ऑफकोर्स एब्जॉर्प्शन बढ़ाने के लिए इनको खाने के साथ या दूध के साथ देना चाहिए। नर्वस सिस्टम में जैसे बताया, कॉमनली हेडेक, डिजीनेस, एटेक्सिया मतलब मस्कुलर इनकोऑर्डिनेशन, ब्लरिंग ऑफ विजन, डिसओरिएंटेशन मतलब टाइम प्लेस पर्सन का आइडिया नहीं होना, उसको अपन क्या बोलते हैं, डिसओरिएंटेशन, टाइम प्लेस पर्सन का आइडिया नहीं होना, एंड कन्वर्जन्स एट हाई डोज, और हाई डोज पर झटके आना, ये बहुत डेंजरस है। लॉन्ग टर्म यूज पर अगर देखें तो स्किन के लेयर पर अपने को देखने में आती है, और खास तौर पे डार्क स्किन कलर वालों में देखने में आता है। हेयर की ब्लीचिंग देखने में आती है, मतलब हेयर का कलर कम हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। नेल्स में डिस्कलरेशन और म्यूकस मेम्ब्रेन में डिस्कलरेशन देखने में आ सकता है। एंड लाइकेनॉइड रिएक्शन, मतलब लाइकेनॉइड रिएक्शन का मतलब स्किन जो है वो लेदर जैसी हो जाती है, लेदर जैसी रिएक्शन, ऐसा याद रखो, जो अपना चमड़ा होता है वैसी हार्ड हो जाएगी अगर स्किन, तो अपन उसको क्या बोलते हैं, लाइकेनॉइड रिएक्शन। सच रिएक्शन इज कॉल्ड एज लाइकेनॉइड रिएक्शन। रिवर्सिबल डिपोजिशन इन द कॉर्निया, मैंने बताया इट्स नॉट हार्मलेस, लेकिन इरिवर्सिबल टॉक्सिसिटी ऑफ रेटिना जो मैं पहले ही बता चुका हूँ, विच कैन लीड टू इवन ब्लाइंडनेस। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर बुल्स आई मैक्यूलोपैथी, पहले ही बता दिया। क्वेश्चन है कॉम्पिटेटिव एग्जाम में ऑलरेडी पूछा गया क्वेश्चन है। व्हेन यूज फॉर लॉन्ग टाइम हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन इज प्रिफर्ड ओवर क्लोरोक्विन, पहले ही बता दिया, because it is water soluble and having less tendency to get deposited in various tissues. So whenever we are using for long period of time, hydroxychloroquine will be always preferred over chloroquine. अदर लॉन्ग टर्म एडवर्स इफेक्ट्स की बात करें तो मायोपैथी मतलब मस्कुलर कॉम्प्लिकेशंस, ओटोटॉक्सिसिटी भी हो सकती है, कान में प्रॉब्लम हो सकती है, एंड साइकियाट्रिक प्रॉब्लम्स इंक्लूडिंग सुसाइडल टेंडेंसीज जो है देखने में आ सकती है। क्लोरोक्विन इज वन ऑफ द सेफेस्ट ड्रग टू बी यूज्ड इन द प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी में सेफेस्ट ड्रग है, सेफेस्ट ड्रग है। अब आपको एक जैसे कॉन्सेप्ट बताऊं जो आगे बता दूंगा, चलिए प्रोफाइलेक्सिस ऑफ मलेरिया में वहां बताएंगे, वहां डिस्कस करेंगे। मलेरिया के केस में कैसे ट्रीटमेंट करें, 500 मिलीग्राम की क्लोरोक्विन फॉस्फेट की गोली, 2 गोली एक साथ खिलानी है, 2 गोली एक साथ खिलानी है, क्योंकि वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन मलेरिया क्लोरोक्विन का वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ज्यादा है, इसलिए हम लोडिंग डोज का प्रयोग करेंगे, मतलब 2 गोली एक साथ खिलाएंगे। फिर तीसरी गोली 6 घंटे बाद, चौथी गोली 24 घंटे पे, और पांचवी गोली 48 घंटे। सो फर्स्ट डोज विल बी स्टेट and 2 tablets state, and after 6 hours 1 tablet, then after 24 hours 1 tablet, and then after 48 hours 1 tablet. So 5 गोली का कोर्स आया। Along with that 15 मिलीग्राम प्रीमाक्विन should be given daily for 2 weeks, 2 हफ्ते तक 15 मिलीग्राम की प्रीमाक्विन जो है डेली देनी पड़ेगी। क्यों देनी पड़ेगी आप समझ में आ गया होगा आपको, टू किल द हिप्नोसाइट्स, हिप्नोसाइट्स को किल करना। ये ट्रीटमेंट भी साथ साथ शुरू हो जाएगा पहले दिन से, पहले दिन से ये ट्रीटमेंट शुरू हो जाएगा। 15 मिलीग्राम की प्रीमाक्विन जो है हम डेली पेशेंट को दे देंगे, लेकिन एक बात बतानी पड़ेगी, बिकॉज पेशेंट को रेगुलर प्रीमाक्विन जा रही है, पेशेंट शुड बी वार्न अबाउट वन थिंग, एक चीज के लिए प्रीमाक्विन के लिए अपने को वार्न करना पड़ेगा। पेशेंट को बोलना पड़ेगा कि तीसरे से 5वें दिन पे आपकी यूरिन जो है ब्राउन कलर की हो सकती है, कोला कलर की हो सकती है, कोका कोला होता है ना, पेप्सी कलर, जो पेप्सी का जो कलर होता है, वैसी अगर यूरिन आ रही है तो स्टॉप द ड्रग इमीडिएटली, दवा इमीडिएटली बंद करनी है, इमीडिएटली दवा बंद करनी है, बिकॉज ये बता रही है कि पेशेंट को हीमोलिसिस हो रहा है और G6PD एनीमिया हो सकता है। इमीडिएटली दवा को जो है स्टॉप करना। प्रोफाइलेक्सिस ऑफ मलेरिया, हाँ यहां मैं बता रहा था जो इंपॉर्टेंट बात है कि एक फीमेल है जिसको वाइवेक्स मलेरिया हो गया, वाइवेक्स मलेरिया हो गया, आपने उसको क्लोरोक्विन दे दिया, क्लोरोक्विन से उसका वाइवेक्स मलेरिया ठीक हो गया। बट समस्या क्या है कि प्रेग्नेंट फीमेल्स में वी कांट गिव प्रीमाक्विन, बिकॉज प्रीमाक्विन इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन प्रेगनेंसी। प्रीमाक्विन जो है प्रेगनेंसी में कॉन्ट्राइंडिकेटेड है। अब क्या करें, महिला को बार बार रिलैप्स रोकने के लिए क्या करूं, प्रीमाक्विन दे नहीं सकता, और क्लोरोक्विन जो है वो 3 दिन देने के बाद बंद कर दी, ट्रीटमेंट तो हो गया, लेकिन रिलैप्स रोकना, और आपने को मालूम है प्रेग्नेंट फीमेल्स में यूं भी एनीमिया होता है, एंड वाइवेक्स का जो रिलैप्स है इट इज वेरी कॉमन, विच इज वन ऑफ द कॉज ऑफ
एनीमिया, हमारे देश में एनीमिया का एक कॉमन कॉज है वायरस मलेरिया। तब क्या करें, ऐसी केस में क्या करेंगे, हर हफ्ते जो महिला प्रेग्नेंट महिला है हर हफ्ते जो है प्रीमा क्वीन जो है प्रीमा सॉरी हर हफ्ते जो है, वेरी सॉरी, हर हफ्ते क्लोरोक्वीन की 500 मिलीग्राम की गोली दे देंगे। हर हफ्ते 500 मिलीग्राम की क्लोरोक्वीन की गोली दे देंगे जब तक कि बच्चे की बर्थ नहीं हो जाती। और बर्थ के बाद फिर अपन प्रीमाक्विन दे सकते हैं। आफ्टर बर्थ प्रीमाक्विन दे दिया अपन ने तो वो चल जाएगा। तो हम महिलाओं में प्रोफाइलेक्सिस, जो प्रेग्नेंट महिला है उसमें प्रोफाइलेक्सिस इस तरह से, प्रीमाक्विन सॉरी हाँ अपनी हार्ट जो क्लोरोक्विन है, क्लोरोक्विन का प्रोफाइलेक्सिस में अपन उपयोग करते हैं। 500 मिलीग्राम की गोली हर हफ्ते देके अपन रोक सकते हैं। ट्रीटमेंट जो है, हम जब मलेरिया के एंडेमिक एरिया में जा रहे हैं जहाँ मलेरिया है, हफ्ते भर पहले अपन एक गोली प्रीमाक्विन की खा लेंगे। और जहां मलेरिया एंडेमिक एरिया में रहेंगे, जब तक रहेंगे वहां हर हफ्ते क्लोरोक्विन की गोली खाएंगे। और आने के बाद हम 4 हफ्ते तक गोली खाएंगे। 4 हफ्ते तक मतलब एक 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 4 हफ्ते तक 4 गोली जो है खानी पड़ेगी जब तक कि घर में पहुंचे। बिकॉज हो सकता है कि घर निकल जब वहां से मलेरिया एंडेमिक एरिया के निकलने के जस्ट एक दिन पहले मेरे को मच्छर ने काट लिया, और अगर प्रिवेंशन नहीं है तो अगेन मुझे मलेरिया हो सकता है। तो 4 हफ्ते तक कम से कम जो है हम रखेंगे। लेकिन अगर मलेरिया एंडेमिक एरिया में हम गए हैं और वहाँ क्लोरोक्विन इफेक्टिव नहीं है, क्लोरोक्विन इफेक्टिव नहीं है, तब फिर हमको प्रोफाइलेक्सिस दूसरी दवाइयों से करना पड़ेगा। तो बोले सर कौन सी दवाइयों से करना पड़ेगा, तो हमको ऐसी केसेस में अगर मैं बेस्ट प्रिफर्ड बोलूँ तो मेफ्लोक्विन है। हर हफ्ते मेफ्लोक्विन की 500 मिलीग्राम की गोली खाएगा अगर पेशेंट, जहाँ पर फेल्सीपेरम मलेरिया है या मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट मलेरिया है, तो वहाँ पर मेफ्लोक्विन हर हफ्ते में एक गोली खानी पड़ेगी। सल्फाडॉक्सिन पायरिमिथामिन भी अगर मालूम है कि अगर वहाँ सेंसिटिव है तो ये भी हर हफ्ते एक गोली ले सकते हैं। अगर इसके अलावा तीसरी बात करें फेल्सीपेरम मलेरिया में, तो जो एंडेमिक एरिया में, तो एटोबोकोन प्रोग्वानिल कॉम्बिनेशन, प्रोग्वानिल एटोबोकोन कॉम्बिनेशन लेना पड़ेगा। बट ये कॉम्बिनेशन पेशेंट को डेली खाना पड़ेगा, डेली खाना पड़ेगा। इन कॉन्ट्रास्ट टू दैट मेफ्लोक्विन एंड सल्फाडॉक्सिन पैरामिथामिन ये पेशेंट को हर हफ्ते एक गोली लेनी पड़ेगी। सो दैट इज अ प्रॉब्लम। सो दैट इज वाई अगेन प्रीमाक्विन जो एटोबोकोन और प्रोग्वानिल कॉम्बिनेशन जो है ना वो अपन अवॉइड करते हैं। Now some non-malarial uses of क्लोरोक्विन और हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन। ऑफ कोर्स ऑल नॉन मलेरियल यूजेस में बोल दूं तो हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन के होंगे तो गलत नहीं होगा, है ना, गलत नहीं होगा। इरिथेमा नोडोसम लेप्रोसम, डेंजरस कॉम्प्लिकेशन लेब्राटोरी रिएक्शन होती है। इरिथेमा नोडोसम लेप्रोसम ये एक लेब्राटोरी रिएक्शन है। इस लेब्राटोरी रिएक्शन में स्किन रैशेस हो जाएंगे, नोड्स बन जाएंगे और अल्सरेशंस हो जाएंगे, अल्सरेशंस हो जाएंगे। और ये लीथल होता है। इरिथेमा नोडोसम लेप्रोसम लेब्राटोरी रिएक्शन में कैन बी फैटल, मौत हो सकती है, मौत हो सकती है। हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन इफेक्टिव है, 300 मिलीग्राम की गोली अपन रोज देंगे पेशेंट को इसको ट्रीट करने के लिए। ज्यादा बेहतर ट्रीटमेंट अगर अपन देखें तो प्रेडनिसोलॉन कॉर्टिकोस्टेरॉइड है। प्रेडनिसोलॉन की जो डोज है 40 मिलीग्राम वंस डेली दे सकते हैं। बट अगर कंडीशन सीवियर है, अगर कंडीशन सीवियर है तो डोज को हमको डबल करना पड़ सकती है। तो प्रेडनिसोलॉन 40 टू 80 मिलीग्राम डेली अपने को पेशेंट को देना पड़ेगा। ट्रीटमेंट छोटा नहीं है इरिथेमा नोडोसम लेप्रोसम का, 6 महीने और ज्यादा चल सकता है। एंड द थर्ड ड्रग विच कैन बी गिवन इज थैलिडोमाइड। तीसरी दवा जो अपन दे सकते हैं वो थैलिडोमाइड है। तो 3 दवाइयां याद रखेंगे इरिथेमा नोडोसम लेप्रोसम में। नंबर 1 हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन, नंबर 2 प्रेडनिसोलॉन 40 टू 80 मिलीग्राम, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन 300 मिलीग्राम, नंबर 3 ड्रग इज थैलिडोमाइड। आई डोंट नो द डोज ऑफ द ड्रग और याद रखने का ऐसा जरूरत नहीं। Hydroxychloroquine is very effective in photogenic reaction, that is light induced reaction, light induced reaction के against बहुत अच्छी दवा है। It is very effective symptomatic treatment in conditions of discoid lupus and systemic lupus erythematosus. Again, इसका basis क्या है? Immunomodulatory reaction. Symptomatic management can be achieved with infectious mononucleosis. Infectious mononucleosis में symptomatic improvement देखने में। And hydroxychloroquine is one of the first line agent in the management of disease modifying anti-rheumatoid disease in rheumatoid arthritis. डिसीज मॉडिफाइंग एंटी रूमेटाइड ड्रग्स के रूप में हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन 2 दवाइयों के साथ बहुत कॉमनली यूज होती है, एक लेफ्लुनोमाइड और methotrexate. लेफ्लुनोमाइड methotrexate हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन ट्रिपल ड्रग कॉम्बिनेशन इज वेरी कॉमनली यूज्ड इन द मैनेजमेंट ऑफ रूमेटाइड आर्थराइटिस। रूमेटाइड आर्थराइटिस में बहुत कॉमनली ये ट्रिपल ड्रग कॉम्बिनेशन यूज करते हैं। methotrexate हफ्ते में एक बार देते हैं, लेफ्लुनोमाइड 10 मिलीग्राम की डोज में रोज देते हैं, और हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन 300 मिलीग्राम रोज खिलाई जाती है।
हेपेटिक अमीबियासिस, क्लोरोक्विन हम चूज कर सकते हैं जबकि अपने को ऐसा लग रहा हो कि मेट्रोनोजल को अपन दे नहीं सकते, मेट्रोनोजल को दे नहीं सकते किसी कारण से, यह हो सकता है रियरली रेजिस्टेंस हो। हाउएवर मेट्रोनोजल का रेजिस्टेंस अपने को एंटा अमीबा हिस्टोलाइटिका में आज तक देखने में नहीं आया है। डोज बढ़ा दो तो इफेक्ट रहता है। क्लोरोक्विन जो है अमीबिक डिसेंट्री में इफेक्टिव नहीं है। इट इज नॉट इफेक्टिव अगेंस्ट अमीबिक डिसेंट्री बिकॉज in amoebic dysentery the infection is at the level of large intestine. Amoebic dysentery में infection large intestine में, and chloroquine is completely absorbed, completely पूरी तरह से absorb हो जाएगी, it will unable to reach into the large intestine, वो large intestine में reach नहीं कर पाए, और वो सीक्रेट भी नहीं होगी। अगर सीक्रेट भी हो जाती तो भी दे देते, लार्ज इंटेस्टाइन में सीक्रेट हो जाती तो भी दे देते, लेकिन दोनों ही नहीं हो रहा, एंड देयरफॉर वी विल नॉट रिलाय क्लोरोक्विन फॉर द मैनेजमेंट ऑफ बेसिलरी डिसेंट्री। बेसिलरी डिसेंट्री में ड्रग ऑफ चॉइस मेट्रोनोजोल। Acute intermittent porphyria, one of the best effective agent is hydroxychloroquine. Acute intermittent porphyria, other porphyrias also it is effective. Sarcoidosis, disease of unknown cause, डिसीज ऑफ अननोन कॉज, और बिल्कुल वैसा ही क्लिनिकल सिम्टम्स, क्लिनिकल फीचर्स दिखाते हैं जैसे ट्यूबरक्लोसिस दिखाते हैं। ट्यूबरक्लोसिस जैसी है, एंड हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन इज फाउंड इफेक्टिव। Now lastly, जैसा मैंने बताया, क्लोरोक्विन एंड हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन they are also found effective in newer coronavirus infection. The drug probably increases endosomal pH and inhibits the binding and multiplication of virus in the host tissue. But पहले बता चुका हूँ ये दवा बैन कर गई है because it is responsible for widening of QRS interval, T wave abnormalities and cardiac arrest. हार्ट बंद हो जाएगा। तो बीमारी कोरोना से मरने के पहले पेशेंट हार्ट अटैक कार्डियक अरेस्ट से मर गए। तो आप क्या चाहते हैं अपन सोचना। आर्टिमिसानिन डेरिवेटिव्स मोस्ट इफेक्टिव कॉम्बिनेशन, दवा का इफेक्ट अपन ने देख मैकेनिज्म ऑलरेडी देख लिया है। रैपिड क्लियरेंस पैरासाइट का कराते हैं, फास्टेस्ट एक्शन है बट शॉर्ट ड्यूरेशन। एडवर्स इफेक्ट्स आर नथिंग सिग्निफिकेंट, एलर्जिक रिएक्शंस हो सकती हैं। They can responsible for reversible decrease in the reticulocyte and neutrophil count. रेटिकुलोसाइट और न्यूट्रोफिल काउंट रिवर्सिबली कम करते हैं और ना बहुत ज्यादा कंसर्न नहीं। जितने अभी तक अपन ने देखे हैं स्टडीज, अपन स्टडीज ना बोलते हो, मैं ऐसा बोलूंगा कि जितने अपने जो अपनी जो फर्दर अपने को जो नॉलेज है अभी तक का जो नॉलेज है ना आर्टिमिसानिन्स का, ये पाया गया है कि यार ये जो है टेरेटोजेनिक एज सच नहीं पाई गई। बट एज फार एज पॉसिबल अगर हो सके तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में अवॉइड करना है प्रेगनेंसी में। परंतु अब सोचे कि अगर किसी महिला को फैल्सिफेरम मलेरिया हो गया है और उसकी जान जा सकती है, तो फिर अपन ये नहीं सोचेंगे कि यार उसको दें कि नहीं दें, देना है, बिकॉज वहां पर बेनिफिट ज्यादा है, रिस्क कम है, बच्चा तो दूसरी बार भी हो सकता है। और इस तरह से बच्चों में 5 किलोग्राम से कम के वेट में तो अवॉइड करना है, 5 किलोग्राम से कम के वेट में अवॉइड करना है। बाकी अदरवाइज चिल्ड्रन और प्रेगनेंसी जो है सेकंड थर्ड ट्राइमेस्टर प्रेगनेंसी बिल्कुल दे सकते हैं, देना चाहिए, फैल्सिफेरम मलेरिया में देना चाहिए, और बच्चों में भी हमको प्रीफर करना है बिकॉज सबसे इफेक्टिव है, सबसे इफेक्टिव है इसलिए। एज मैंने आपको जैसा बताया, आर्टिमिसानिन्स आर नेवर गिवन अलोन। इनफैक्ट अगर कोई पेशेंट, जिस पेशेंट को सेरिब्रल मलेरिया है जो अनकॉन्शियस हो गया था, तो अनकॉन्शियस पेशेंट को हम आर्टिमिसानिन का पेरेंटल ड्रग देंगे, और जैसे ही पेशेंट होश में आएगा, एज सून एज पेशेंट बिकम्स कॉन्शियस, जैसे ही पेशेंट कॉन्शियस हो जाएगा तो आर्टिमिसानिन के साथ कॉम्बिनेशन वाली दवाइयां उसको दे देंगे, जैसे मेफ्लोक्विन है, डॉक्सीसाइक्लिन है, क्लिंडामाइसिन है, सल्फाडॉक्सिन पायरिमिथामिन है। जैसे ही पेशेंट होश में आएगा वैसे ही देना है, क्योंकि हम मलेरिया के रिक्रूडिशंस को रोकना चाहते हैं। इसलिए जैसे ही पेशेंट होश में आएगा वैसे ही हमको दूसरी जो कॉम्बिनेशन वाली दवाइयां हैं अलग से देनी पड़ेगी, बिकॉज पेरेंटल कॉम्बिनेशन नहीं आते और देते भी नहीं। पेरेंटली जो है आर्टिमिसानिन अलोन आता है, कॉम्बिनेशन जो भी आते हैं वो ओरल फॉर्मुलेशन आते हैं, है ना, ये याद रखें, कॉम्बिनेशन जितने हैं ओरल फॉर्मुलेशन। नाउ कुछ आर्टिमिसानिन कॉम्बिनेशंस में आपको यहाँ पर जैसे बताया है, आर्टिमिसानिन कॉम्बिनेशंस के लिए जो दवाइयां अपन यूज करते हैं, ल्यूमेफेंट्रिन, सल्फाडॉक्सिन पायरिमिथामिन, मेफ्लोक्विन, पाइपराक्विन एंड आर्टिरोलेन। एक कॉम्बिनेशन आर्टिमिसानिन के 100 मिलीग्राम की गोली दिन में 2 बार खिलाना है 3 दिन तक,
means artesunate 100 milligram twice daily for 3 days plus single dose of sulfadoxine pyrimethamine 575 milligram। 1575 मिलीग्राम की सल्फाडॉक्सिन पायरिमिथामिन की सिंगल टेबलेट दे दिया और आर्टिसोनेट की गोली जो है दिन में 2 बार सुबह शाम खिलाई पेशेंट को 12 आवरली 3 दिन तक। शानदार कॉम्बिनेशन, 3 दिन में मलेरिया खत्म फेल्सिपेरम। दूसरा कॉम्बिनेशन 100 मिलीग्राम आर्टिमसाइनिन दिन में 2 बार, कितने दिन तक? 3 दिन तक, ऊपर जैसे ही चल रहा है। बट हमने अब यहाँ पे क्या कॉम्बिनेशन वाला दूसरी दवा चेंज कर दी। इसमें ये कर सकते कि मेफ्लोक्विन 750 मिलीग्राम सेकेंड डे पे दे दिया और 500 मिलीग्राम थर्ड डे पे दे दिया। टोटल डोज जो है अगर अपन देखें तो ये 1250 मिलीग्राम हो रही है, इट इज अबाउट 1250 मिलीग्राम। एक्चुअली पेशेंट क्या मेफ्लोक्विन का सिंगल डोज जो है अगर 1250 मिलीग्राम दे तो वो दे सकते हैं, लेकिन टॉलरेट नहीं कर पाता है। एंड बिकॉज पेशेंट अनेबल्स टू टॉलरेट, सो हमने क्या कर दिया यार 750 मिलीग्राम दूसरे दिन दे दो और 500 मिलीग्राम 300 दिन तीसरे दिन दे दो, काय को तकलीफ लेना है ना, काय को तकलीफ लेना। तो ये बढ़िया है कि भाई 750 मिलीग्राम दूसरे दिन और 500 मिलीग्राम तीसरे दिन और आर्टिमसाइनिन 100 मिलीग्राम की गोली दिन में 2 बार 3 दिन। One of the best marketed combination is artemether lumefantrine combination। बहुत बढ़िया कॉम्बिनेशन, सबसे ज्यादा मार्केटेड कॉम्बिनेशन है हमारे देश में। हमारे देश में सबसे ज्यादा मार्केटेड कॉम्बिनेशन है, शानदार है। ल्यूमिथर फोर्ट के नाम से भी आता है और 1:6 के रेशियो में जो अपन इसको देते हैं, मतलब आर्टिमेथर 1 तो ल्यूमिफेंट्रिन 6 रेशियो में देते हैं। तो रेशियो अगर अपन देखें डोज के हिसाब से तो 20:120। एडल्ट डोज जो है इसकी 4 टाइम्स करना है अपना, एडल्ट डोज इसकी 4 टाइम्स करना है, मतलब 24 जा 80 एंड 124 जा 480। सो 480 मिलीग्राम की एक गोली आएगी, कॉम्बिनेशन मार्केट में अवेलेबल है। ये गोली पेशेंट सुबह शाम खाएगा 3 दिन तक, 3 दिन तक खाएगा, सो इट इज वन ऑफ द बेस्ट कॉम्बिनेशन। चौथा कॉम्बिनेशन जो है आर्टिसोनेट के साथ 100 मिलीग्राम ट्वाइस डोली के साथ पाइपराक्विन है। और पाइपराक्विन जो है वो पेशेंट को अपन अगेन सिंगल डोज देते हैं। पाइपराक्विन की सिंगल डोज जो है काम चल सकता है। आर्ट्रोलिन इज आल्सो वन ऑफ द एजेंट विच इज कंबाइंड और इसका भी कॉम्बिनेशन अवेलेबल है। मलेरिया की क्लोरोक्विन की अपन ऑलरेडी बात कर चुके हैं कैसे देना है। क्लोरोक्विन रेजिस्टेंट मलेरिया आपको बता दिया, एसीटी प्रेफर करो। नाउ ट्रीटमेंट ऑफ कॉम्प्लिकेटेड मलेरिया और सेरेब्रल मलेरिया। ऑफ कोर्स सेरेब्रल मलेरिया इज ए कॉम्प्लिकेटेड मलेरिया। सेरेब्रल मलेरिया कॉम्प्लिकेटेड मलेरिया है क्योंकि पेशेंट इसमें कॉन्शियस नहीं है। एंड व्हेन पेशेंट इज अनकॉन्शियस वी विल प्रीफर पेरेंटल आर्टिसोनेट। हम पेरेंटल आर्टिसोनेट प्रीफर करेंगे या आर्टिमेथर प्रीफर करेंगे या आर्टिथर प्रीफर करेंगे। लेकिन चॉइस ऑफ ड्रग कौन सी होगी? आर्टिसोनेट। Choice of drug will be artesunate because it is water soluble, and can be given by IV। इसको IV दे सकते हैं और वाटर soluble। डोज बड़ा सिंपल है, याद रखना 2.4 मिलीग्राम पर केजी बॉडी वेट, और ये 2.4 मिलीग्राम पर केजी बॉडी वेट जो है इसको 3 दिन में इक्वल इंटरवल करते हैं। 3 दिन मतलब 72 आवर्स में इक्वल इंटरवल्स में दे दें। इक्वल इंटरवल्स में 4 डोज दे दें, काम हो गया। 2.4 मिलीग्राम पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से कैलकुलेट कर लें और उसको कैलकुलेट करने के बाद जो है इक्वल डोजेस में 72 आवर्स में डिवाइड कर लें। लेकिन जैसा मैंने आपको बताया पेशेंट को फॉलोड बाय ओरल ट्रीटमेंट करना है, मेफ्लोक्विन, डॉक्सीसाइक्लिन, क्लिंडामाइसिन, सल्फाडॉक्सिन, पायरिमिथामिन, जैसे पेशेंट होश में आता है। बेहोश पेशेंट को ओरली दवा गलती से भी नहीं देना है, गलती से भी नहीं देना है। अनकॉन्शियस पेशेंट को कभी भी गलती से ओरल ड्रग नहीं देना है, रेस्पिरेटरी पैसेज में चले जाएगी, नहीं बचता होगा, बचता भी होगा पेशेंट तो नहीं बचेगा, आपके कारण मर जाएगा। अगर आर्टिमेथर या आर्टिथर यूज करने हैं तो ये बहुत ऑयली प्रिपरेशंस होते हैं, बिकॉज दे आर ऑयली प्रिपरेशन, दे आर गिवन बाय इंट्रामस्कुलर। इनको इंट्रामस्कुलर रूट से देते हैं। इनिशियली जो अपन की डोज रहेगी दैट इज 3.2 मिलीग्राम पर केजी बॉडी वेट, 3.2 मिलीग्राम पर केजी बॉडी वेट रहेगी। ये पहली स्टेट डोज पहली कितनी थी अपन ने? 3.2 मिलीग्राम पर केजी बॉडी वेट देंगे एंड देन इट इज फॉलोड बाय 1.6 मिलीग्राम पर केजी बॉडी वेट। 1.6 मिलीग्राम पर केजी बॉडी वेट देंगे एवरी 24 आवर्स, हर 24 घंटे में देंगे टिल पेशेंट बिकम्स कॉन्शियस, जब तक कि पेशेंट कॉन्शियस नहीं होता। जैसे ही पेशेंट कॉन्शियस हो जाएगा हमको अगेन मैंने बताया कॉम्बिनेशन थेरेपीज को देना पड़ेगा, मतलब कॉम्बिनेशन जो इसके साथ करते हैं वो देना।
क्विनाइन इज नाउ लेस प्रिफर्ड, लेकिन अगर क्विनाइन देना है, मान लीजिए क्विनाइन देना है तो कैसे देंगे? क्विनाइन जो है उसकी डोज 20 मिलीग्राम पर केजी बॉडी वेट है, इनिशियली 20 मिलीग्राम पर केजी बॉडी वेट देंगे। और इसको भूल याद रखना है कि इसको डेक्सट्रोज 5%, 10% या 20% के साथ देंगे, या तो 5, 10 या 20% के साथ क्विनाइन देंगे, बिकॉज क्विनाइन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हाइपोग्लाइसीमिया इटसेल्फ। यूबी फैल्सिफेरम मलेरिया में खुद भी हाइपोग्लाइसीमिया हो सकता है कॉम्प्लिकेशंस के दौरान। फैल्सिफेरम में जो हाइपोग्लाइसीमिया होता है वो इसलिए होता है बिकॉज यहाँ पर पैरासाइट का लेवल ब्लड में बहुत ज्यादा होता है। पैरासाइट का लेवल ब्लड में बहुत ज्यादा होने के कारण क्या होता है, और पैरासाइट बहुत ज्यादा होंगे तो क्या करेंगे, ग्लूकोज खाएंगे और हाइपोग्लाइसीमिया होगा। सो फैल्सिफेरम मलेरिया के पेशेंट में इटसेल्फ हाइपोग्लाइसीमिया होता है, और क्विनाइन दे दिया तो हाइपोग्लाइसीमिया और हो जाएगा, हाइपोग्लाइसीमिया और हो जाएगा। एंड देयरफॉर ऐसे पेशेंट्स में हम 5, 10 या 20% डेक्सट्रोज के साथ में इस दवा को देंगे। इनिशियली 20 मिलीग्राम पर केजी दे देंगे, फॉलोड बाय 8 आवरली जो है 10 मिलीग्राम पर केजी बॉडी वेट से देंगे, फॉलोड बाय 10 मिलीग्राम पर केजी बॉडी वेट से देंगे टिल पेशेंट बिकम्स कॉन्शियस। पेशेंट जैसे ही कॉन्शियस होगा, अगेन हम दवा के साथ इस दवा के साथ कॉम्बिनेशन में डॉक्सीसाइक्लिन, क्लिंडामाइसिन या सल्फाडॉक्सिन पायरिमिथामिन का कॉम्बिनेशन जरूर ऐड करेंगे, जरूर ऐड करेंगे। बट क्विनाइन इज नॉट यूज्ड। आरटी मेथड, आरटी थर और आरटी सुनेट शानदार दवाइयां, काय को क्विनाइन के लिए अपन जाएंगे, है ना, काय को जाएंगे, बिकॉज देयर आर सेवरल एडवर्स इफेक्ट्स विद द क्विनाइन। सो इतनी बातें जो है अपने को मलेरिया में जो है जानकारी होनी चाहिए, इतनी जानकारी जरूर होनी चाहिए, है ना। और मैंने आपको एक बता ही दिया था कि आजकल फैल्सिफेरम के मलेरिया के ट्रांसमिशन को रोकने के लिए प्रीमाक्विन जो है अपन दे रहे हैं, है ना, प्रीमाक्विन जो दे रहे हैं, और प्रीमाक्विन को लो डोज में दे रहे हैं, क्योंकि हम फैल्सिफेरम मलेरिया को सबसे ज्यादा रोकना चाहते हैं। सो थैंक यू वेरी मच, नेक्स्ट टाइम पर बात करेंगे।